Good morning, 8th class students. Today we will start our lesson number 5, Introduction to Java and BlueJ. So in this chapter we will learn the terms Introduction to Java, Introduction to BlueJ and its features, what is an object, class, features of object-oriented programming, starting BlueJ, modifying a program, fundamentals of Java language, data types and operators, precedence of operators, the class declaration, and accepting arguments through main method. So let's start the chapter from the first line. Look at your book, page number 54. Language. Language is a means of communication that bridges the gap between the individuals and enables them to exchange ideas and feelings. तो लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं. जनरली वी यूज़ अ लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और मराठी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो जनरली हम आपस में जब बात करते हैं हम कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. अगर हमारी लैंग्वेज हिंदी है then we are using Hindi, if our language is English or Punjabi or Marathi, so we are communicating the language in that language which we know. So likewise, to communicate with computer we use a variety of languages known as प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसी तरह कंप्यूटर में अगर हमने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना हो, कंप्यूटर से की भाषा में बात करनी हो, then computer understand its programming language only. So there are so many variety of languages are there like C, C++, Python, Java, Oracle, VB, VB.NET. So many languages are there. Near about 200, more than 200 programming languages are there which computer understands, and these languages are known as programming languages. Like any other language, a programming language has its own set of rules that is रेफर टू एज सिंटेक्स. तो हर एक लैंग्वेज का अपना रूल होता है, लिखने का अपना तरीका होता है, अपना मेथड होता है, और यू कैन से अपना ही उसका एक अलग लिखने का तरीका, एक कोड होता है. सो हर एक लैंग्वेज लाइक हिंदी में हम मात्राएं लगाते हैं, इंग्लिश में वी आर यूजिंग इज एम आर और वर्ब्स फॉर्म्स. ओके, पंजाबी वी आर यूजिंग सियारी बिहारी, मराठी. सो इन दिस वे देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू राइट द programs. Okay, so these codes is known as syntax. So when we write program in Java, this code is known as syntax, and the syntax is known as the grammar of programming language. So basically हम कह सकते हैं syntax means उसको प्रोग्राम को लिखने की ग्रामर क्या है, कैसे हम उस कोड को लिख सकते हैं, that we know through its syntax. A computer is a versatile machine capable of performing different tasks, from simple mathematical operators to complex ones, and from simple designs to multimedia animations. कंप्यूटर एक ऐसी versatile means हर तरीके से यूज़ होने वाली मशीन है जिसमें हम अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं. इसमें हम डिफ़िकल्ट सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, और डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफ़िकल्ट वन ऑल्सो वी कैन सॉल्व, एंड वी कैन मेक सिंपल डिज़ाइंस ऑल्सो बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, एंड यूजिंग we can make very beautiful animations or multimedia files also by using the computer. Do you think a computer can perform these operations on its own? क्या आपको लगता है ये सारे काम कंप्यूटर खुद कर सकता है? No, a computer cannot perform these function on its own but needs a set of instructions called programs. पर नहीं, कंप्यूटर अपने आप ये सारे functions नहीं कर सकता, उसको कुछ instructions चाहिए. जो कौन देता है उसको? User, human beings. We are giving the instructions, and when we are giving the instructions in the computer language, this is called a program. These programs are translated into machine codes by translator, interpreter and compiler. So these are the names of the software, interpreter and compiler. तो ये जो सारे programs हैं हमारे, हम अपनी कोड में लिखते हैं, तो उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में मशीन कोड में जब चेंज करना है तो हमें ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स. अ प्रोग्राम रिटन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इज़ नोन एज सोर्स कोड. तो जब हम कोई कोड बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, उस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड. वेयर एज अ प्रोग्राम कन्वर्टेड बाय ट्रांसलेटर इनटू कोड दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड. एज वी आर राइटिंग द प्रोग्राम इन सोर्स कोड. सोर्स कोड मीन्स हम लिखते हैं प्रोग्राम इंग्लिश में. इंग्लिश इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, बट कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज. तो हमारी जो लैंग्वेज है सोर्स कोड को कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है? ट्रांसलेट करना पड़ता है. जब हम उस लैंग्वेज को, आवर लैंग्वेज मीन सोर्स कोड इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर. दैट कोड फिर वो कंप्यूटर के लिए कौन सा कोड बन जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड. इस कोड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड, यू कैन ऑल्सो से.
The language used to write these instructions is called a programming language and the person who creates this program is known as a प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सोर्स कोड को लिखने के लिए जो पर्सन लैंग्वेजेस लिखता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम बनाता है। और जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो हो जाएगी कंप्यूटर के लिए उसकी लैंग्वेज। दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Nowadays more than 200 programming languages are available to develop programming for specific areas of application। तो आजकल 200 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर फील्ड्स में या मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने में हम यूज़ करते हैं। So we have, according to ICSE syllabus, in 8th standard, 9th standard and 10th standard we will learn the language Java. So Java is, you can say, high level language and it is also object oriented programming language। ये बेसिकली किसने डेवलप की थी? जेम्स गॉसलिंग ने की थी। सन माइक्रो सिस्टम्स कंपनी के साथ मिलकर उसने की थी और शुरू में इसका नाम रखा था ओक, पर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि ओक जो नाम था वो पहले ही किसी और लैंग्वेज के साथ रिजर्व था। दैट्स वाई दे हैव चेंज इट्स नेम। सो नाउ लेट्स नो मोर अबाउट जावा इन द पार्ट इंट्रोडक्शन टू जावा। इन दिस एरा ऑफ नेटवर्क and internet, all the applications being developed must have a global outlook. We need software that works anywhere on any platform with the other applications as well। तो आजकल इंटरनेट का दौर है, नेटवर्क है, बहुत सारे अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग तरह के फ़ोन हैं, अलग अलग तरह की विंडोज़ हैं और यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो उन सबको चलाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम कोई भी चीज़ किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाएं, किसी भी विंडोज़ किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाएं, वो सारे कंप्यूटर्स या सारे एप्लीकेशन जहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोबाइल्स में चलनी चाहिए। द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन इंडिपेंडेंट, वो किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकती है। इसमें बनाए हुए प्रोग्राम किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकते हैं। इट मीन्स दैट ए जावा program written on a computer will run on any other computer even if the hardware configuration of the operating system is different। चाहे उसमें अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो फिर भी, लाइक फॉर एग्जांपल आपने विंडोज़ में कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई प्रोग्राम बनाया और आप उसको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज वो प्रोग्राम किसने बनाया? जावा में। तो जावा इज़ वेरी एडवांस लैंग्वेज, यू नो। सो जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय in January 1996 by a team। एक्चुअली ये 1991 में डेवलप हुई थी, यहाँ पे 1996 थी और 1991 में डेवलप हुई थी बाय ए टीम ऑफ सन माइक्रो सिस्टम हेडेड बाय जेम्स गॉसलिंग। तो अब यहाँ पे बेटा 1991 कर लेना, ओके। तो इसको डेवलप किया था मेन जो पर्सन है उसका नाम है जेम्स गॉसलिंग। हु डेवलप्ड जावा? जेम्स गॉसलिंग। और जावा एक कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट मीन्स ये कोई भी ऑब्जेक्ट लेके उसके ऊपर प्रोग्राम बनाती है। ऑब्जेक्ट हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ओके। सो लेटर इन 2010 इट वाज एक्वायर्ड बाय ओरेकल। तो बाद में, पहले सन माइक्रो सिस्टम्स के पास थी ये जावा लैंग्वेज, इन्होंने बनाई थी जेम्स गॉसलिंग के साथ मिलकर, पर बाद में इसको ओरेकल ने खरीद लिया उनसे। जावा इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ लैंग्वेज for creating internet based applications। It creates small application modules which can be embedded into web pages। तो जावा जो लैंग्वेज है वो हम वेब पेजेस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, या आप कह सकते हो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। जो इंटरनेट के ऊपर आप जैसे गेम्स खेलते हो, हाई डेफिनेशन गेम खेलते हो, इंटरनेट से कनेक्ट हो तभी खेलते हो, जो कुछ ऐसी एप्लीकेशन, जो ऐसे प्रोग्राम वो जो तभी चलेंगे, जैसे आपकी MCS ऐप है तो वो आपको वो तभी चलेगी जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो वो जो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसे एप्लीकेशन हो जो बहुत हाई लेवल पे होती हैं, इंटरनेट के थ्रू ही चल सकती है। तो जावा ऐसी लैंग्वेज है जो ऐसी एप्लीकेशंस को चला सकता है। इट क्रिएट स्मॉल एप्लीकेशन मॉड्यूल्स विच कैन बी एम्बेडेड इनटू वेब पेज। तो छोटे छोटे हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं इसके अंदर। एंड दीज मॉड्यूल्स आर कॉल्ड एप्लेट्स दैट एनेबल्स अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद web pages। Most of the applications that we download on mobile phones for internet games are developed in Java। तो आप मोबाइल फ़ोन्स पे जितनी भी गेम खेलते हो, हाई डेफिनेशन टाइप्स गेम्स खेलते हो, तो हाउ दे आर मेकिंग विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग ऑल्सो। सो आई होप यू अंडरस्टूड अप टू हेयर। सो नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू BlueJ and in its feature I will send you next time। So up to here you also read and understood the chapter। Thank you students।